بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل MSc نادیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسٹارٹ کریں یونٹ 4 ہائر آرڈر ڈیریویٹیوز، ایکسرسائز 4.1 ہے۔ کوشچن نمبر 1، کیلکولیٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آرڈر ڈیریویٹیو آف y از اکول ٹو cos اسکوائر x۔ اب اس سے پہلے ہم فرسٹ آرڈر نکالتے رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو ہم نے نکالا ہے۔ تو اس چیپٹر میں جو ہے آپ نے ہائر آرڈرز ملا دیے ہیں کہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون اینڈ سو آن۔ تو آپ جو ہے آرڈر کس طرح سے معلوم کرتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے۔ تو یہاں پر کچھ سمبل ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی فنکشن دیا ہوا ہے، فنکشن ایف دیا ہوا ہے، تو اس کا جو ڈیریویٹیو ہے فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو اس کو اس طرح سے شو کرتے ہیں، سیکنڈ کو ایف ڈبل گیپ سے اور تھرڈ کو ٹرپل سے، فورتھ کو آپ فورتھ لکھ دیں، اسی طرح ففتھ کو ففتھ سے اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ یا اگر وائی ہے تو وائی پرائم، وائی ڈبل، ٹھیک ہے، وائی پرائم، وائی ڈبل پرائم، وائی ٹرپل پرائم، اس طرح سے شو کرتے ہیں۔ وائی از اکول ٹو cos اسکوائر ایکس، تو اس کا فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو ہم معلوم کر رہے ہیں، تو وائی پرائم از اکول ٹو، یہاں پر ہم پاور رول اپلائی کریں گے، cos اسکوائر ہے تو 2 پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور cos، اب پاور کیا ہے 2 ہے، 2 میں سے 1 مائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 2 - 1، اور آگے کیا لکھیں گے، cos x کا ڈیریویٹیو لیں گے، ٹھیک ہے، cos x کا ڈیریویٹیو لیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا 2 cos، یہاں x لگا لیجیے گا، یہ x کی پاور تھی، یہ پاور x کی ہے 2 - 1، ٹھیک، تو یہاں پر cos x 2 میں سے 1 مائنس کریں گے 1 آئے گا، 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور cos x کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا، cos کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے مائنس سائن، ٹھیک ہے، نیگیٹو سائن آتی ہے، جب بھی cos ہوتا ہے تو سائن نیگیٹو آتی ہے، اور cos کس میں چینج ہوتا ہے، سائن میں چینج ہوتا ہے، سائن x، ٹھیک ہے، cos x سائن x میں چینج ہوگا۔ اچھا، اس کو مزید ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہاں مائنس سائن جو ہے وہ پہلے آ جائے گی، ٹھیک ہے، -2 لکھ لیتے ہیں، اور سائن ایکس cos ایکس، -2 سائن ایکس cos ایکس۔ اب اس کو دیکھیں، اس کو آپ -2 سائن ایکس لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، -2 سائن ایکس cos ایکس، اس کے برابر ہوتا ہے مائنس سائن ویسے ہی آ جائے گی، اور مائنس سائن 2x کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آ گیا فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو ہے، تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو از اکول ٹو مائنس سائن 2x، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو ہم سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو جو ہے وہ فرسٹ ڈیریویٹیو سے ہی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرسٹ آرڈر ہمارے پاس کیا ہے، فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو یہ ہے مائنس سائن 2x، ٹھیک ہے، تو اسی سے ہم سیکنڈ ڈیریویٹیو بنائیں گے، تو یہاں پر -2 جو ہے وہ پہلے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، سائن کا ڈیریویٹیو cos ہوتا ہے، تو یہاں cos لکھیں گے، سائن 2x کا ڈیریویٹیو cos 2x ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو cos 2x لکھیں گے، 2x کا ڈیریویٹیو 2 کے برابر ہوتا ہے، تو 2 کہاں لکھیں گے، یہاں پہلے ہم 2 لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، سیکنڈ آرڈر۔ اب تھرڈ آرڈر ڈیریویٹیو ہم سیکنڈ سے ہی بنائیں گے، تو تھرڈ آرڈر ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا، یہاں پر -2، اس کو ہم ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں، اور cos 2x کس میں تبدیل ہو جائے گا، مائنس سائن 2x میں، اور 2x کا ڈیریویٹیو 2 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، 2 × 2 = 4، اور یہاں پر کیا ہے، سائن 2x، یہ آ گیا آپ کے پاس تھرڈ آرڈر ڈیریویٹیو 4 سائن 2x، یہ ہے آنسر۔ کوشچن 2 ہے، فائنڈ سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو آف فنکشن f(x) از اکول ٹو cos x اپون 1 + sin x، تو اس کو ہم کیسے سالو کریں گے، اس میں ہم کوشچن رول اپلائی کر رہے ہیں، ایف پرائم ایکس معلوم کرنا ہے، یعنی فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو معلوم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم یہاں نیچے جو ہے وہ نیچے ہم کیا لیں گے، اسکوائر لے لیں گے، ٹھیک ہے، 1 + sin x
होल स्क्वायर। और अब हम नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगी। और अब हम ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे, क्या है, कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से, कॉस एक्स। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन एक्स आएगा, सही है। और यहाँ पर माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस और साइन एक्स का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, अब यहाँ माइनस साइन हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगी, अब साइन प्लस की आ जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख लें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो सकता है ना 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। 1 को पहले लिख लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, -1 अपॉन, क्या बच रहा है, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर माइनस साइन को पहले लिख लेते हैं और इसके बाद पावर क्या है, -1 लिखेंगे और 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे। 1 प्लस साइन एक्स, पावर क्या है, -1, यहाँ क्या है, -1 है, यहाँ -1। ठीक है, पावर में से 1 माइनस करते हैं तो -1 पावर थी और -1 डाल दिया हमने यहाँ पर। और अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक, तो इसका हम डेरिवेटिव लिख देते हैं कॉस एक्स। तो यहाँ पर आएगा माइनस, अब क्या यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माइनस लिखेंगे। 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 में 1 प्लस करेंगे, -2 हो गया, -2 कॉस एक्स। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन एक्स होल पावर -2 कॉस एक्स। अब देखें यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स पर पावर क्या है, -2, तो अगर हम इसे नीचे लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर को अगर हम पॉजिटिव कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 2। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आंसर। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन आपको एच दिया हुए हैं तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 को आप पहले लिख लें और मल्टीप्लाई बाय 7t और पावर क्या होगी, 7 - 1। इसी तरह 6 है तो 6 को पहले लिख लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4t 4 - 1
प्लस 8 को पहले लिख लें, 3 है और t की पावर 3 माइनस 1 है, माइनस 12। अब यहाँ पर t की पावर क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है, 18 क्या है, 18 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। फिर 7 ज़ा 21, t 7 में से 1 माइनस करेंगे, पावर 6 आ जाएगी, 6 4 ज़ा 24, t की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ये डिक्रीज़ हो रही है, पावर डिक्रीज़ होती जा रही है, 7 से 6 हो गई, 4 से 3, 8 3 ज़ा 24 और t की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 12 इसी तरह आएगा और t की पावर 0 हो गई। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी से मालूम करेंगे हम, ठीक है। HT ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहें तो आप लिखते भी जाएं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 21 को पहले लिख लें और 6t 6 माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 24 को पहले लिख लें और 5 पावर है 5t 5 माइनस 1, यहाँ भी 6 माइनस 1 है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से। इसके बाद यहाँ पर प्लस 24 2t 2 माइनस 1 और यहाँ पर क्या है 12, e की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक। तो h डबल प्राइम t इक्वल टू, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 24 से, 2 को 24 से, लेकिन मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ सके, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126, t पावर 5 हो जाएगी, 6 में से 1 माइनस हो गया। इसी तरह 5 को ये पावर 3 है, 3 है, ये पावर यहाँ भी 3 है और इधर भी 3, तो 24 को 3 से करेंगे तो आएगा आपके पास 72 और t की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा, 48 2 और 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 1 पावर आएगी। बाकी यहाँ 12 1 ज़ा 12 और 12 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा ये। इसके ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, इसी से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि 5 को आप 126 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 630 और 5 में से 1 माइनस कर दें 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 72 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 144 और 2 में से 1 माइनस करेंगे पावर 1 आएगी, 1 हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर ये t 1 के बराबर है, 48 1 ज़ा 48 आएगा, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। 4 को 630 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 25 20, t की पावर 3 हो जाएगी, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा और यहाँ पर t की पावर 1 है तो 144 ही रहेगा। t की पावर 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 बचेगा, t नॉट किसके बराबर होता है, t नॉट इक्वल टू 1, तो 144 1 से मल्टीप्लाई हो गया 144 आएगा, ये है आंसर। पार्ट 2 है, इसमें सबसे पहले आप जो पावर में चेंज कर लें क्योंकि पावर में नहीं है ये, तो यहाँ पर √3 है तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/3 और माइनस x को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, जब x ऊपर जाएगा 1/8 लिख लें और x को ऊपर ले जा रहे हैं तो x की पावर नेगेटिव हो गई। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x की पावर 1/2। अब इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 1/3 पावर, इसको पहले लिखेंगे x और 1/3 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर 1/8 है और अब आपने 2 से
पावर क्या है -2 लिखेंगे x -2 -1, ठीक है। पावर में से एक एक माइनस करते जाना है और यहाँ पर 1/2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1/2 है -1। f प्राइम x इज इक्वल टू 1/3 और x की पावर क्या आएगी -2/3 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो -2/3 आ रहे हैं। यहाँ पर 2 और 8 कट रहा है, 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ क्या आएगा 1/4। 1/4 यहाँ पे 2 कट गया और x की पावर क्या आएगी माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगी पावर, और यहाँ पर 1/2 x की पावर 1/2 -1, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/2, ठीक है। तो -1/2 है, ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी से हम सेकंड मालूम करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। यहाँ पर 1/3 को पहले लिख लें और पावर क्या है -2/3 x पावर -2/3 -1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से x पावर -3 -1 और यहाँ पर 1/2 ये लिख लिया आपने। अब आपने ब्रैकेट में लिखना है -1/2 x की पावर क्या है 1/2 -1, तो यहाँ पर 2 1 2 -2 और 3 3 9, x की पावर -2/3 -1, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा -5/3 आएगा, प्लस यहाँ साइन जो है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो साइन यहाँ माइनस आ रही है और 3 1 3 3/4, x की पावर माइनस माइनस प्लस -4 आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 1 1 2 2 4 और x की पावर क्या आएगी -1/2, ठीक है। पावर में नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर आएगी -3/2 ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसी से अब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2/9 पहले लिखेंगे और अब पावर क्या है -5/3 x पावर -5/3 -1, यहाँ पर -3/4 है और पावर क्या है -4 से मल्टीप्लाई होगा x पावर -4 -1 और यहाँ पर प्लस साइन है 1/4, पावर क्या है -3/2 x की पावर -3/2 -1। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, 9 3 27, x पावर इसका एलसीएम लेंगे -5/3 -1 का तो आएगा -8/3 पावर आएगी और इसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 4 और 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 1 3 और x की पावर माइनस माइनस प्लस -5 आ रही है। इसके बाद है प्लस माइनस माइनस 1 3 3, 4 2 8, 3/8 है। यहाँ पर x की पावर आएगी -5/2, -3/2 -1 का एलसीएम ले लेंगे तो -5/2 आएगा। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। अब यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया है, ये मैंने लिख दिया है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है जो हम मालूम करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा 10/27 को आप ऐसे ही लिख लें और अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पावर क्या है -8/3, तो -8/3 लिख दें यहाँ पर, और x की पावर -8 डिवाइडेड बाई 3 -1 हो जाएगी, प्लस 3, x की पावर क्या है -5 है तो -5 आ जाएगा यहाँ पर, और x पावर -5 -1 -3/8 और यहाँ पर पावर क्या है -5/2, x की पावर -5/2 -1। 10/27 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, ठीक है। तो 10 8 80,
माइनस 80/27 और x की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। ठीक है, तो यहाँ आ रहे हैं 81 माइनस 80/81 आ रहे हैं और x की पावर हो जाएगी, जब हम एलसीएम लेंगे -8/3 -1 का तो -11/3 आ रहा है। ठीक है, तो -11 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह 3 5 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन माइनस की आएगी 15 x की पावर माइनस माइनस प्लस -6 माइनस माइनस, यहाँ माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 और 8 2 16 x की पावर -5/2 -1 का एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा -7/2। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो -80/81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x का रेसिप्रोकल ले लें तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 11/3 माइनस यहाँ पर पावर क्या है -6, तो x पावर -6 को नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। 15/16 x की पावर क्या है -7/2, तो इसको भी हम 1/ में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 7/2। अब यहाँ पर x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है 11/3, तो ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन से हम ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से कि -80/81 और x की पावर 11/3 है, तो 3 का हम क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, x की पावर 11 ले लेंगे और 3 1/3 है ना, 1/3 है तो इसका क्या होगा क्यूब रूट आ जाएगा x पावर 11 का। इसी तरह 15 x पावर 6 आएगा 15/16। अब यहाँ पर क्या है x जो है इसमें 7/2 है। ठीक है, 7 को अगर आप हटा दें तो 1/2, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, तो x पावर 7 और यहाँ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये है आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।